Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video we'll be solving paper of 2020 May-June and the variant is 2. Okay, so let's start with the question number 1. One thing is important, we need to read the instructions carefully. Whatever examiner is asking you, you need to read it carefully. तो क्वेश्चन अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो तकरीबन समझ लें आधा सवाल सॉल्व हो जाता है और आपको मैप करना है दिमाग में आइडिया कि व्हाट वी नीड टू डू या हाउ विल गो अबाउट दिस particular question. So it says Stephen had an income of 21,500 in 2018. His annual income increased to 22,790 in 2019. What it is asking you about percentage increase. तो जब भी हमें increase percentage या किसी भी वैल्यू की increase वैल्यू निकालनी होती है तो उसका बेसिक तरीका ये होता है कि जो न्यू वैल्यू है विच इज़ 22790 माइनस 21500 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू. तो परसेंटेज यूजली हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू निकाल रहे होते हैं. नाउ व्हाट यू डू, यू सॉल्व इट ऑन कैलकुलेटर इन ऑर्डर टू गेट द आंसर विच विल बिकम 22790 माइनस 21500 which will become 1290 divided by 21500 times 100. This will become 6%. ठीक है, तो the answer to first part A is question number 1. Part A is 6%. Now the second part it says Steven invest 1260 in bank. The bank pays simple interest rate of 2.5%. The principal is 1260, the rate is 2.5% and the time is 3 years. Now it says calculate the amount. So first what we need to do, we need to calculate the interest because simple interest is PRT over 100 which will become 1260 times 2.5 times 3 divided by 100. So the interest will become 1260 multiplied by 2.5 multiplied by 3 which will become 9450 and then you divide it by 100 it will become 94.5. तो 94.5 will become interest, but उसने सवाल में हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि we need to give amount. तो amount is basically principal plus interest which will become 1260 plus 94.5. So the answer will become plus 1260. The answer will become 1354.5. 1354.5. Alright, the last part says Stephen changes 4,300 Indian rupees into dollars. The exchange rate is $1 is 67.8 Indian rupees. Work out how much he receives. Give your answer correct to nearest dollar. Now this is important, this instruction is important. We need to give answer in nearest डॉलर. तो हमने बताना है कि उसको कितने डॉलर्स मिले होंगे. तो इसका बेसिक तरीका ये होता है कि जो भी आपको एक्सचेंज रेट दिया हुआ है उसको आप रेशो में बना लें 1:67.8. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉलर. तो डॉलर के सामने हम डॉलर लिखेंगे और इंडियन रुपीज़ के सामने इंडियन रुपीज़ लिखेंगे विच वो 4300. तो जस्ट यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट व्हाट 4300 ओवर 67.8 विच विल बिकम नंबर ऑफ डॉलर्स. तो ये हो जाएगा 4300 divided by 67.8. तो the answer will become 63.42 डॉलर्स. मगर क्योंकि उसने सवाल में मैं कहा कि नियरेस्ट डॉलर्स में आंसर चाहिए तो द नियरेस्ट डॉलर्स विल बी 63 डॉलर्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. Sorry, I mean question number 1. Alright, so question number 2 says the length of rectangle is 6 centimeters more than its width and they have defined variable for width which is W. ठीक है, और कहता है the perimeter of rectangle is 37 centimeters. आपको perimeter given है 37 centimeters, length given है 6 centimeter more than width और width उसने W डिफाइन की हुई है. तो ऐसे सवालों के लिए बेहतर एक छोटी सी पिक्चर बना लें ताकि सवाल को
दिमाग में मैप करना आसान हो जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज विड्थ, तो लेंथ विल बिकम विड्थ प्लस 6. ठीक है, तो द बेसिक फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times length plus width. So perimeter here is 37 and 2 times length is width plus 6 plus width, which will become 37 equals to twice 2w plus 6. So when you multiply it, it will become 37 equals to 4w plus 12, which will become 4w equals to 37 minus 12, which will become 25 and then 25 over 4. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे it will become 25 divided by 4, which will give you 6.25. Now this is the answer for part A. Now see, in second part it says a rectangle 20 centimeters by 8 centimeter is cut from a rectangle 28 centimeter by 15 centimeter. तो हमें एक इंटरनल रेक्टेंगल की डायमेंशन दी हुई है, एक एक्सटर्नल रेक्टेंगल की डायमेंशन दी हुई है. नाउ सी, ये बेसिक हिंट है कि ये लिमिट ऑफ एक्यूरेसी वाला सवाल है, जिसमें वो बोल दे कि ईच मेजरमेंट इज़ करेक्ट इज़ गिवन करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, या जब भी बोले कि मेजर्ड करेक्ट टू फना 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 कोई भी यूनिट हो, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स हो, मीटर्स हो, सेकेंड्स हो, डिग्रीज हो, कुछ भी हो, तो जब भी वो करेक्ट टू नियरेस्ट बोल दे इसका मतलब ये है कि हम लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे. नाउ सी, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट सेज कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. नाउ सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, तो शेडेड रीजन निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है. हम क्या करेंगे, इंटरनल रेक्टेंगल माइनस एक्सटर्नल रेक्टेंगल, या छोटे रेक्टेंगल को हम माइनस कर देंगे बड़े रेक्टेंगल से. तो अगर ये शेडेड रीजन मुझे बड़े में बड़ा चाहिए, ये शेडेड रीजन का एरिया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो इंटरनल रेक्टेंगल है ये वाला, ये छोटे से छोटा हो और एक्सटर्नल जो रेक्टेंगल है वो बड़े से बड़ा हो, तभी ये वाला हिस्सा मैक्सिमम आएगा. तो हमने करना ये है, इससे बात एक समझ में आ गई कि हमने जो छोटा रेक्टेंगल है उसकी मिनिमम डायमेंशंस लेनी है और जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस लेनी है. या लेट्स पुट इट दिस वे कि जो छोटा रेक्टेंगल है उसका हमने लोअर बाउंड लेना है डायमेंशंस का, और जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका हमने अपर बाउंड लेना है और दोनों के एरियाज़ को माइनस कर देना है. तो इस डायमेंशन के अपर बाउंड क्या हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर्स है तो इसमें ऑब्वियसली 0.5 ऐड हो जाएगा और इधर भी 0.5 ऐड हो जाएगा, और इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर भी 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो द न्यू डायमेंशंस विल बिकम 28.5 multiplied by 15.5. This will be the area of bigger rectangle minus 7.5 times 19.5. This will be the area of a smaller rectangle. तो इनका एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बिकम 28.5 times 15.5, which will become 441.75 subtracted by 7.5 times 19.5. This will become 146.25. 146.25. Now what we need to do, we need to subtract these two areas, hence the answer will become 295.5. 295.5 centimeter square. This will be your required answer. So this is the answer for question number 2. Alright, so question number 3 says a light L is fixed on a building 8 meters above the base of the building. Alright, so if this is the base of building, light is being fixed here, ठीक है, और इसका जो distance है वो 8 मीटर बता रहा है. फिर कहता है a point P is on the horizontal ground 12 meter from the base. ठीक है, तो बिल्डिंग वर्टिकल है, ये बेस हॉरिजॉन्टल है और उसने एंगल भी आपको 90 प्री डिफाइन दिया हुआ है, ये एंगल उसने ऑलरेडी 90 डिफाइन करके दिया हुआ है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एल फ्रॉम पी. तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. अगर आप रिकॉल करें टिग्नोमेट्री तो हमें याद है कि हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके ये सॉल्व कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमें पता है जिस भी लाइन पे एंगल ऑफ कंसिडरेशन या एंगल ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन पड़ा हुआ हो उसको हम बेस बोलते हैं और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो
आपका बेस और परपेंडिकुलर वी यूज इन टेंजेंट थीटा या टेंजेंट एक्स. 10x will become perpendicular over base which will become 10 inverse 8 over 12. अच्छा कैलकुलेटर पे while solving these type of problems कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू लिखें ताकि आपके आंसर्स में मसले कम अज़ कम हों और जो डेसिमल से आप ज़्यादा दूर ना जाएं. तो कोशिश करें कि जब भी आप साइन कॉस टेन यूज़ कर रहे हो तो पूरी वैल्यू लिखें. तो ये हो जाएगा 33.69 क्योंकि हमें ऊपर उसने बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ जो एक्यूरेसी होती है वो हम एंगल्स के लिए वो 1 डेसिमल प्लेस तक होती है. तो विल बी राइटिंग 33.7 डिग्री. दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. अभी आगे कहता है अ लैडर इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड. एक लैडर उसने ग्राउंड पे प्लेस की एट क्यू टू रीच द हाइट एल. ठीक है. The ladder makes an angle of 70 degrees with the ground. Calculate QL. What we need to do, we need to find this length. तो obviously जो भी साइड 90 के opposite होती है we call it hypotenuse and right angle triangle. ये obviously perpendicular हो जाएगा या इसको हम opposite भी कहते हैं क्योंकि एंगल इस लाइन पे रखा हुआ है तो ये बेस या adjacent बन जाएगा. ठीक है. तो perpendicular और hypotenuse हम यूज़ करते हैं साइन रेशो में. तो sin 70 will become perpendicular which is 8 over hypotenuse which is QL. तो QL will become 8 over sin 70. तो ये पूरी वैल्यू लिखें इसी तरीके से. कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो कैसियो FX991 ES है तो आपके पास ये वैल्यूज पुट करना बड़ा आसान होगा. ऑब्वियसली आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा हाउ डू वी यूज़ कैलकुलेटर. नहीं तो विल मेक अ वीडियो ताकि पता चले कैलकुलेटर्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे. तो द आंसर विल बिकम 8.51 क्योंकि हमें बाकी आंसर सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देने होते हैं. तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. इसके बाद वो कहता है अ वर्टिकल पोल RS of length 1.6 is placed touching the horizontal ground. The light produces a shadow TS of the pole on the horizontal ground. LTR is a straight line and TB is 6.5. Calculate TS. हमें ये लेंथ निकालनी है बेसिकली. अच्छा एक कॉमन सी बात समझते हैं. देखें ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि उसने बोला है कि वर्टिकल लाइन बनाइए तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये कॉमन एंगल है. तो एक बात समझ में आती है कि TSR एंड TBL आर बेसिकली व्हाट दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स. तो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि रेशो ऑफ देयर corresponding sides will be equal. तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 over 1.6 क्योंकि इसकी ये पूरी अगर मैं TBL की बात करूँ तो इसकी ये पूरी लेंथ अगर 8 है तो TSR की लेंथ 1.6 है. और अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बात करूँ तो उसकी बेस है TB 6.5. ऑब्वियसली इसके सामने रखूँगा 6.5 और ये बराबर होगी TS के. नाउ व्हाट विल डू, विल सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर. तो TS कितना हो जाएगा 6.5 times 1.6 over 8. So it will become 6.5 times 1.6 divided by 8. So the answer will become 1.3. So the length of TB will be 1.3 meters. So that's it. That is all with question number 3. Alright, so question number 4 says the table summarizes the time MRs for that each student in a year group is spent listening to music in one day. Some of the results are shown on the histogram. Now this is a histogram. अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि जो वैल्यूज़ हमें हिस्टोग्राम में प्लॉट करके दे दिए तो वी वोंट बी फाइंडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ दोज particular things क्योंकि we do not have enough time to waste. ठीक है. अच्छा what we need to do, we need to find the frequency. Now see, you might remember the frequency density is frequency over class width, and in order to find class width what we do, will subtract the upper bound with lower bound. हम क्या करेंगे, upper bound minus lower bound करेंगे, will get the class frequency. अच्छा अभी मुझे
अगर थर्ड इंटरवल की बात करूँ तो उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज़ नॉट गिवन, ठीक है, क्योंकि उसका पहला पार्ट ही मुझे कहता है यूज़ अ हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हाउ वुड वी डू, देखें थर्ड की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें दी हुई है 30, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज़ 30 है, ठीक है, और क्लास विड्थ हमें थर्ड की कितनी पता है, 2 माइनस 1.5 विल बिकम 0.5, और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम 30 equals to p over 0.5, which will become 30 into 0.5, that will be 15, तो the value of p will be 15, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मुझे बाकी हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए कहता है, मुझे कहता है कंप्लीट द हिस्टोग्राम, ठीक, तो किस तरीके से करेंगे, बाकी सारी मुझे पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ में निकाल लेता हूँ, इन सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा हमने करना क्या है, वही तरीक़ेकार है कि फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 14 और क्लास विड्थ कितनी है 2.5 माइनस 2 विल बी 0.5, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विल बिकम 14 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट विल बिकम 28, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी 28, फिर 3.5 माइनस 2.5 या 3 होल 1/2 या 3.5 माइनस 2.5 विल बिकम 1, और 23 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 23, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सॉरी आ जाएगी 23, बिकॉज 23 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 23, इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 3.5 विल बी 1.5, तो व्हाट विल डू, विल डिवाइड 18 बाय 1.5, that will be 12, और सेकंड लास्ट वाले का 7 माइनस 5 विल बी 2, 2 डिवाइड 12 डिवाइड बाई 2 विल बी 6, तो ये हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ आ गई। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्लॉट देम, ठीक है, तो 2 से लेके 2.5 तक 28 तक हमारा कर्व जाएगा, तो 2 से 2.5, दिस इज़ 2.5, और ये कहाँ तक जाएगा 28 तक, तो ये 25, 26, 27, अच्छा इनके दरमियान हमारे पास 5 डिफरेंस है, और जो हमें ब्लॉक्स हैं वो 10 है, तो एक ब्लॉक 0.5 का मतलब 2 ब्लॉक्स विल बिकम 1, तो दिस विल बिकम 26, दिस विल बी 27, दिस विल बी 28, तो 28 आएगा यहाँ पर, और ये हम इस तरीके से कर्व इसको 2 से 2.5 तक आ गया। फिर दूसरा हमारे ग्राफ बोलता है 2.5 से 3 तक 23 है, तो दिस इज़ 20, दिस इज़ 21, दिस इज़ 22, दिस इज़ 23, ठीक है, तो 23 तक हमें जाना है 3.5 तक, 3.5 तक हम ये आ गए। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि 3.5 से 5 तक हमें 12 तक जाना है, तो दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, दिस इज़ 12, 12 से हमें 5 तक आना है, दिस इज़ 5, ये 5 तक हम यहाँ पर आ गए, एंड लास्ट हमें 6 तक आना है, 7 तक, 5 से 7 तक हमें 6 पर आना है, तो 5 एंड द 6, ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें सवाल कहता है दिस टेबल समराइजेस द टाइम C hours that each student in a group of 50 students spent cooking in 1 week, ठीक है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम स्पेंड कुकिंग। अच्छा, मीन निकालने के लिए वी नो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है विच वी कॉल x, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 2 + 0 डिवाइड बाई 2 विल बिकम 1, 4 + 2 डिवाइड बाई 2 will become 3, similarly 4 + 6 10, 10 divided by 2 will be 5, 8 + 6 14 divided by 2 7 and then 9, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आपको याद होगा कि मीन इज़ बेसिकली सम ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, तो अब मुझे fx निकालना है, दिस इज़ x, तो 1 times 8 will be 8, 3 times 16 will be 48, 5 times 15 will be 75, 7 times 7 will be
49 and 9 times 4 will be 36. So what we need to do, we need to add them up. हम इन सबको ऐड कर लेंगे to get fx. ये आपके पास आ जाएगा sum of fx. This sign represent sum, this sign represent sum. सही है, तो ये हो जाएगा 8 plus 48 plus 8 plus 48 plus 75 plus 49 plus 36. This will become 216 and sum of f will become 8. ये तो obviously 50 होगा क्योंकि उसने 50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए. तो the mean will become 216 divided by 50, which will be 216 divided by 50. So your answer will be 4.32 hours. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमें कहता है draw the cumulative frequency curve. अच्छा, cumulative frequency curve निकालने के लिए what we need to do, we need to have cumulative frequency. तो how do we find cumulative frequency? वर्क स्पेस हमने यहीं पे मैनेज करना है, तो ये cumulative frequency हो गई. cumulative frequency हम किस तरह से निकालते हैं? cumulative frequency हम निकालते हैं कि हर प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी में या हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में हम टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं. तो फर्स्ट विल बिकम 8 plus 16 will be 24 plus 15 will be 39 ये हो जाएगा 39. then 39 plus 7 will be 46 and then 46 plus 5 will be 50. तो अब देखें 2 पे हम अब अपर बाउंड्स पे काम करेंगे सारे. सही है, जो भी हम काम करेंगे वो अपर बाउंड्स पे काम करेंगे. तो 2 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो 8. 2 पे 8. अब देखें यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक 10 यूनिट्स हैं, तो 10 डिवाइड बाई 10, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो या 1 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमें कहता है कि 2 पे वैल्यू है 8. 2 पे ये 8 पॉइंट आ गया. अच्छा, फिर 4 पे है 24, 4 पे 21, 22, 23 एंड 24. फिर 6 पे हमें कहता है 39 है, 6 पे 39. 7 पे हम 8 पे हमें कहता है 46 है, 8 पे 46. और 10 पे हमें कहता है 50. ऑब्वियसली 10 पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अच्छा, इस पे इतना स्मूथ कर्व नहीं आएगा क्योंकि सॉरी, लेट मी डू इट वंस मोर. ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा. आप पेपर पे बनाएंगे तो पेपर पे ज़्यादा स्मूथ कर्व आता है. ठीक है, तो इसके बाद क्या था, यूज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू एस्टिमेट फॉर द मीडियन. अच्छा, वी नो मीडियन इज़ अ मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू. तो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए हमारी फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइड बाई 2 25. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 25 पे आएंगे और 25 से इस कर्व तक हम आएंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू चेक कर लेंगे, विच इज़ हियर 4.1. ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, तो let's move to question number 5. It says solve these simultaneous equations. अच्छा, 2 equations हैं, 2 variables हैं, we can easily solve them. यूजली simultaneous equation को हम काफ़ी सारे मेथड से कर सकते हैं, मगर द मेथड आई प्रेफर इज़ के आप दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें. इधर सेकंड इक्वेशन वो किस तरीके से होगा कि सेकंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उससे आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. इट विल बिकम 6x, 2 3 times 6, 3 4 times 12, negative plus negative and plus will become negative and then 33. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट विल बिकम 6x प्लस 6y इक्वल्स टू -12. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, x को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट आई डू, आई चेंज द साइंस. मैं साइन चेंज करता हूँ, दिस विल एलिमिनेट, ये बच जाएगा -18y and this will become 33 plus 12 will become 45. तो y will become -45 over 18.
तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 45 divided by 18 will be 2.5. So the value of y will become minus 2.5. Now what we need to do, we need to put this value in either of the equations. दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो we'll get the value for x. So ये हो जाएगा 2x minus 4 into minus 2.5 will be 11. Minus minus will become plus, it will become plus 10 equals to 11. 2x will become 10 minus 1 and x will become 11. तो ये हो जाएगा negative 1 over 2, तो x will be negative 0.5. तो the values will be negative 0.5 and minus 4.5. ठीक है. The next part says solve the equation. अच्छा, जो बच्चे सिर्फ पेपर पास करने के लिए पेपर में बैठ रहे हैं उनके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि इसमें लिटरली कुछ नहीं करना. हमने इधर भी 4 मार्क्स फ्री के मिल गए ऑलमोस्ट, और इधर भी सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करने के मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा काम कैलकुलेटर नहीं करना है. तो ये सवाल देख लें. वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन. जब भी x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूजली यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. अच्छा, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वी नीड टू गिव आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस. तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस में करेंगे, ताकि हम फाइनल आंसर को करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ कर सकें. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो पहले इस फॉर्म में बनाते हैं, विच विल बिकम 2x², 3 8 टाइम्स 24 माइनस 3x. तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 24 equals to 0. Now see here what we got. Here a will become, a is a coefficient of x² which is 2 here, b is a coefficient of x which is 3, and c is constant which is negative 24. So now quadratic formula is negative b plus minus under root b squared minus 4ac over 2a. तो ये हो जाएगा minus 3 plus minus under root b square minus 4 times a c over 2 times 2. So this will become negative 3 plus minus, you use calculator to solve it, it will become 4 times 2 times 24, which will become positive, and plus 9 will become 201. So it will be under root 201 upon 4. Now take under root of 201, which will be 14.1774. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि -3 प्लस 14.177 ओवर 4, एंड एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा क्योंकि 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में. 14.177 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा -3 divided by 4, which will be 2.79. the final answer in 2 decimal places. और दूसरा हो जाएगा 14.771 plus 3 divided by 4, क्योंकि दोनों पे सेम साइन है तो it will become 4.44. तो our required answer will be 2.79 and 4.44. This will be negative, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन थी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कहता है h is inversely proportional to cube of c. Now this is important कि h जो है वो inversely proportional है. ये रिकॉल करें तो inversely proportional के लिए हम 1/y इस तरीके से लिखते थे. सही है, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे. तो h is inversely proportional to cube of g. तो ये हो जाएगा, एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड फॉर्मूला फॉर h, मतलब h को हमने सब्जेक्ट रखना है. ठीक है. तो हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई. 1 h इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ g. प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो व्हाट विल डू, विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट व्हिच इज k ओवर g क्यूब. अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल डू, विल पुट दीज वैल्यूज़ कि h जब 4.5 है तो k हमारे पास 2 है, तो इट विल बिकम 2 क्यूब. तो k विल बी 4.5 इंटू 8. तो k कितना हो जाएगा, 4.5 टाइम्स 8, दिस विल बी 36. तो h हो जाएगा k की जगह हम 36 लिख देंगे, 36 ओवर g क्यूब.
ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ g व्हेन h इज 32/3। तो हम क्या करते हैं, वही फार्मूला लिखते हैं कि h इज़ 36/g³। h की वैल्यू हमें दी हुई है 32/3 विच इज़ 36/g³। नाउ सिंप्लीफाइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा g³ equals to 36 into 3 divided by 32. Now use your calculator. 36 times 3 divided by 32, it will give you 27/8. So g³ will become 27/8. Now what you'll do, in order to cancel this cube, हमने दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट के लिए हम कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट वाला साइन दबा देंगे तो विल गेट द क्यूब रूट ऑफ इट। तो ये हो जाएगा 2/7। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सॉरी इट विल बी 7/2, माय बैड, सॉरी बल्कि 3/2, इट विल बी 3/2। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज 2 ऑफ दीज कार्ड्स, आपको 5 कार्ड्स बना के दिए हुए हैं जिन पे कुछ इसने नंबर्स लिखे हुए हैं विच आर 5, 2, 4, 6 एंड 3। कहता है 2 ऑफ दीज कार्ड्स आर सेलेक्टेड आर चोजन एट रैंडम, दे आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर वो नेक्स्ट टू ईच अदर रख रहा है तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि हमने रिप्लेसमेंट हमें अलाउ नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। मतलब इफ़ वी चूजन 1 कार्ड तो वो टोटल पूल में से कम हो गया। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर इज़ लेस देन 30। अब समझिएगा, अगर लेस देन 30 नंबर है तो हमें 10th प्लेस पे नंबर जो चाहिए वो 2 ही चाहिए, क्योंकि अगर 3 हो जाता है तो वो नंबर फिर 30 के आगे 30 के आगे जब यूनिट प्लेस पे मैं अगर 0 भी लगाऊंगा तो वो लेस देन 30 नहीं रहेगा। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ 2। 10th प्लेस के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है विच इज़ 2। तो 10th प्लेस के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 5, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/5 फॉर द 10th प्लेस। और यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 कार्ड्स हैं, चारों में से कोई भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो इसके बाद कोई भी कार्ड हो जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कहता है हमें लिस्ट ऑल द पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स दैट आर प्राइम। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम पहले सारे नंबर्स लिख लेते हैं जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, या तो नंबर 52 बन सकता है, 52, 54, 56, 53। इसी तरीके से 25 भी नंबर बन सकता है, 24, 26 एंड 23। फिर और क्या क्या नंबर बन सकता है हमारे पास, 45, 42, 46 एंड 43। इसी तरीके से हमारे पास नंबर बन सकता है 65, 62, 64 एंड 63। सिमिलरली 32, 35, पहले 35 लिख लेते हैं, 35, 32 और 36, 34 और 36। ये हमारे पास टोटल नंबर बन सकते हैं। अब इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं, एक तो प्राइम नंबर है 53, एक है 23, एक है 43। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स डिविजिबल हैं अपने टेबल के अलावा भी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 23, 43 एंड 53। ठीक। नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि वो 4 के टेबल में आता हो। हम देख लेते हैं 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। 4 के टेबल में हमारे पास 52 आता है, 56 आता है, 24 आता है, 40 नहीं आता, अच्छा 64 आता है, 32 आता है और 36 आता है। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 और टोटल नंबर हमारे पास कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो टोटल नंबर 20 बने तो प्रोबेबिलिटी विल बिकम 3/10। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे कहता है रोवन थ्रोज अ डाइस 200 टाइम्स, द बार चार्ट शोज एज रिजल्ट। ये रिजल्ट उसने बताया कि 1 जो है वो तकरीबन 42 दफ़ा आया है, या सॉरी
46 दफ़ा आया है, 2 जो है 31 दफ़ा आया है, 3 भी इसी तरीके से उसने पूरा एक बार चार्ट बना के दिया हुआ है। कहता है यूज़ द बार चार्ट टू कंप्लीट द रिज़ल्ट ऑफ द टू कंप्लीट द टेबल ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो 1 के लिए उसने लिख के दी हुई है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 हमें देखना है। 4 कितनी दफ़ा आया हुआ है? 4 आया हुआ है 22 टाइम्स, तो 4 की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 22। अच्छा 5 हमारा, सॉरी माय बैड, 4 ये नहीं है, 4 है ये, तो 4 आया हुआ है हमारे पास 35 टाइम्स, 5 हमारे पास 22 टाइम्स, और 6 हमारे पास है 30, 1 2 3 4 5 6 7 8, 38 टाइम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। फिर बोलता है यूजिंग रोवन्स रिजल्ट फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट ही ड्रू लेस देन 3, नंबर लेस देन 3। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजायर्ड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या जो भी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो लेस देन 3 उसने बोला है, तो लेस देन 3 ये दोनों हमारे पास रिजल्ट्स हैं, विच आर 46 प्लस 31, और उसने टोटल कितनी दफ़ा डाइस को रोल किया था? 200 टाइम्स। तो इसको डिवाइड बाय हम 200 कर देते हैं, तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बिकम 46 प्लस 31, 46 प्लस 31 divided by 200. So the required answer will be 77 over 200. Next part says, Rowan says that the dice he has thrown is not fair. Make 2 comments to explain why the dice may not be fair. तो हमें 2 comments लिखने हैं कि जिस पे उसने हमें बताना है कि जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सही नहीं है। तो एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि अगर मैं एक दफ़ा डाई रोल करता हूँ तो उसमें 6 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें कोई भी एक नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है 1/6, which is when we divide it, तो 1 divided by 6 will become 0.167। तो अगर मैं इतने लार्ज सैंपल को 200 टाइम्स अगर मैं कोई डाई रोल कर रहा हूँ, और मैं जब मैं रिज़ल्ट चेक करता हूँ तो उसके रिज़ल्ट को 0.167 से ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, इसके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। मगर जब मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें 1 आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं देखता हूँ तो ये तकरीबन पॉसिबिलिटी बनती है 46 over 200, which is 46 divided by 200 will be 0.23, और 5 आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, विच इज़ 22 over 200। तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है 0.11, विच इज़ वेरी लेस। तो जब इतनी ज़्यादा डिविएशन हो, जब इतनी ज़्यादा रिज़ल्ट में डिविएशन हो, तो ऑब्वियसली आपका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसके लिए 2 कमेंट्स हम यही लिख सकते हैं कि भाई रिज़ल्ट जो आपका सैम्पल था, सैम्पल was large enough to estimate the data, और secondly the probability of getting 1 is way higher than 1.6, and probability of getting 5 is way less, ठीक है जी, then 1/6। तो ये probably आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट
पार्ट सेज, अच्छा ऐसे सवालों के लिए वही आप कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि ईजीएस्ट डेटा आ जाए। पहला पार्ट आसान है, 4 पावर एक्स वाई आपको दे रहा है, कहता है द टेबल शोज सम वैल्यूज़ ऑफ वाई विच इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंप्लीट द टेबल। तो पहले मुझे क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 रखना है, वाई इक्वल्स टू 4 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, एंड द सेकंड पार्ट सेज के y इक्वल्स टू 0.5, तो y इक्वल्स टू 4 पावर 0.5। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहे कर लें, नहीं तो ये √4 है, √4 इज 2। देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 4x फॉर 0 to 3। हमने 0 to 3 के लिए इसको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो लेट्स श्रिंक इट अ बिट। मुझे कहता है 0 पे व्हेन x इज 0 y इज 1। तो समझिएगा बात, अभी x की वैल्यूज़ जो हमारे पास चलेंगी, x की वैल्यूज़ 20 डिवीजन में 1 है, तो 1/20, 1 डिवाइडेड बाई 20, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 0.05 ऑफ अ यूनिट, और यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक 10 ही डिवीजन है, तो ईच डिवीजन विल रिप्रेजेंट 1 यूनिट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आगे जाके हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी, तो वी मस्ट नो दैट। अच्छा, तो मुझे कहता है कि व्हेन x is 0 y is 1, तो x is 0 y is 1, दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मुझे कहता है कि when x is 0.5 y is 2, तो x 0.5 इस पॉइंट पे हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 और 0 के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होगा वहाँ पर y 2 हो गया, ये y की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। फिर हमें कहता है when x is 1 y is 4, तो when x is 1 y is 4, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। अच्छा, फिर कहता है when x is 1.5 y is 8, when x is 1.5 this is 1.5 y is 8 ये पॉइंट हो गया। फिर कहता है when x is 2 y is 16, x is 2 y is 16। फिर when x is 2.5 y is 32, y is 32, then 3 y is 64, 3 पे y 64 हो गया। तो this is how your graph will be made। ये स्मूथ कर्व आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो फिर कहता है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल्स टू 2। जब x 2 है तो इस पे आपने टेंजेंट निकाल के देना है। तो इसके लिए मैं टेंजेंट निकालने के लिए ईजीएस्ट फॉर्म यही करता हूँ। टेंजेंट ऑब्वियसली वो लाइन होती है जो कि पॉइंट को एक ही किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके है, तो एक पॉइंट तो मैं यही ले लेता हूँ 2, और 2 पे ये कितना था, x जब 2 था y 16 था। एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ 2 and 16, दूसरा पॉइंट मैं इस लाइन पे से कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं, इधर 2.5 है और y हमारे पास कितना आ रहा है 25, 2.5 and 25। तो ग्रेडियंट क्या होगा, y2 minus y1, 25 minus 16 over 2.5 minus 2, which will be 25 minus 16 divided by 0.5, the gradient will become 18, ठीक है जी। तो ग्रेडियंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर कहता है द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 4 power x ax plus b can be found from the point of intersection of this and this, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखें जब भी आपको जिस तरह से दो इक्वेशंस दे दे तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे के साथ प्लॉट करना है या इनको इक्वेट करना है। क्योंकि जब बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये लाइन और कर्व दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ एक ही हो जाएंगी। तो हम यही करते हैं कि 4 पावर x को बराबर रख देते हैं 20x माइनस 12 के। मगर उसके साथ साथ वो एक चीज़ और भी आप देखें, अगर मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो 4 पावर x के साथ 3 मल्टीपल होना ज़रूरी है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 3 ताकि मुझे इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म हो जाए। तो दोनों तरफ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 68।
x माइनस 36, इक्वेशन की उस तरफ ले आते हैं तो 3 4 पावर x माइनस 60x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. तो here a will become minus 60 and b will become 36. So the next part says that by drawing the line y equals to 20x minus 12 on the grid opposite find all the solutions of 3 4 पावर x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो ये वो लाइन थी जिस पे दोनों लाइंस, दोनों कर्व और लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो व्हाट विल डू, वी नीड टू ड्रॉ दिस लाइन. अच्छा, अब ये जब लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए ईजीएस्ट तरीका यही है कि मैं क्या करता हूँ कि x की कोई सी भी दो वैल्यूज़ कंसिडर कर लेता हूँ और उस पर y प्लॉट कर देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दफ़ा x की वैल्यू 1 कंसिडर करूँ तो हेयर y विल बिकम 20 माइनस 12 विल बी 8. तो एक पॉइंट आ जाएगा 1,8. दूसरा पॉइंट लेट से अगर मैं x की वैल्यू 2 कंसिडर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 40 माइनस 12 y विल बिकम 28. तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2,28. तो व्हाट विल डू नाउ, 1,8, दिस इज पॉइंट 1,8, this is point 1,8, this is point 2,28. we have drew the line already. अच्छा, फिर उस पे से मैंने क्या करना है कि x की वैल्यूज़ निकालनी है. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं हमारे पास, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं x की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इस पे x की वैल्यू है तकरीबन 0.5, 0.6, 0.7, 0.75 के करीब, 0.75. और इधर जब मैं देखता हूँ तो इधर वैल्यू आ रही है x की, ये वाली लाइन मैं नीचे ले आता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है 2.1, 2.2, 2.3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5. तो 2.65 के करीब वैल्यू आ रही है. तो जो हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0.75 और 2.65, 0.75 और 2.65. ठीक है, तो दीज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. अच्छा, तो इस पार्ट में हमें कहता है कि here is a sketch of a graph of a quadratic function. अच्छा, the curve has a maximum point PQ. अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, जब भी मैक्सिमम पॉइंट होगा तो इस मैक्सिमम पॉइंट से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ तो वो इस कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस -2 से लेके इस पॉइंट तक का है और 4 से लेके इस पॉइंट तक का है वो इक्वल होगा. तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका ईजीएस्ट तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ, 4 से लेके 6 तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, विच विल बिकम 6. इसको डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो ये आ जाएगा 3. तो -2 से 3 यूनिट्स अवे ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1. और जो भी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस हो उसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो पहला कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, p की वैल्यू विल बी 1 है. ठीक, अभी हमने q की वैल्यू बनानी है. तो q की वैल्यू के लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन डिज़ाइन करता हूँ और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को y के बराबर रख देंगे. तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर x इक्वल्स टू एक -2 रूट दी हुई है और दूसरा आंसर उसने दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4. तो दिस विल बिकम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इसको जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0, विच विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब एक चीज़ समझिएगा छोटी सी, कि जब भी मैक्सिमम पॉइंट होगा तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव में होगा. ये बात हम, अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देता हूँ कि अगर कभी भी हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं और अगर मैक्सिमम पॉइंट गिवन है तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर के जो a की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है, और अगर यही मिनिमम पॉइंट दिया हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मिनिमम पॉइंट दिया होगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा. तो इसको नेगेटिव करने के लिए व्हाट आई डू, आई शिफ्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द अदर साइड. तो ये हो जाएगा तकरीबन -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन y के बराबर रख देता हूँ. ठीक है, तो क्योंकि अब y की वैल्यू निकालनी तो व्हाट आई डू, आई पुट
1 इन प्लेस ऑफ x, क्योंकि 1 जो है बेसिकली x कोऑर्डिनेट था, आई नीड टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट, तो इट विल बिकम -1 + 2 + 8, 10 -1 will become 9. So this is the required answer of this question. Alright, so moving forward, question number 8 says a birthday cake is in the shape of a cylinder. एक सिलेंडर बनाया हुआ है. There are 2 layers of cake and 1 layer of icing. 2 लेयर केक की हैं, 1 लेयर आइसिंग की है. Each layer of cake has a radius of 10 cm and height of 3 cm. ठीक है. The icing between the 2 layers of cake has a radius of 10 cm. रेडियस सेम है, हाइट 12 mm है. एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम मेंसुरेशन कर रहे होंगे एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है मिस्टेक करते हुए. हमने यूनिट सेम रखने, तो कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली हम यूनिट चेंज कर लेते हैं. 12 mm विल बी 12/10 cm विच विल बी 1.2 cm. तो अब सारा यूनिट्स एक ही उसमें आ गए. आगे हमें कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग एंड द बर्थडे केक, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. तो वही बात है, उसने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मांग लिया है. अच्छा, तो ये जो आइसिंग है, आइसिंग की ये बेसिकली ये लेयर है आइसिंग की, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ सिलेंडर ही बना हुआ है कि इस तरीके से एक ये सिलेंडर उसने बना के हमें दिया हुआ है. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई, r is 10 स्क्वायर और h. अच्छा, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि जब भी आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से ही यूज़ करें. तो पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू h, द आंसर विल बिकम 17157, सॉरी 5 नहीं 1.2 होगा, माय बैड. तो आंसर विल बी 376.99. तो 376.9, या अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना जाए तो 377 विल बी द आंसर. ठीक है. इसके बाद वो कहता है द टॉप एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बर्थडे केक आर नाउ कवर्ड विद वाइट चॉकलेट. हमने क्या किया, बर्थडे केक को का जो टॉप है और जो उसका कर्व सरफेस एरिया, उसको हमने वाइट चॉकलेट से बनाया. बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज टू बी कवर्ड विद चॉकलेट. ठीक है जी, सॉरी वाइट नहीं, विद चॉकलेट, माय बैड. अच्छा, तो ये क्या कहता है कि मैंने इस एरिया को, ये जो कर्व सरफेस एरिया ये, और टॉप को मैंने क्या किया, चॉकलेट से भर दिया. ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया हमें पता चल गया कि हमारा जो टोटल चॉकलेट का एरिया होगा वो टॉप है, और कर्व सरफेस एरिया बेस वाले एरिया पे चॉकलेट नहीं है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h, और जो टॉप सरफेस एरिया है वो पाई r स्क्वायर है. ठीक है. तो इसको सिंपलीफाई करते हैं. 2 पाई r विल बी 10. अच्छा, अब देखिएगा h, हाइट हमारे पास ये टोटल हो जाएगी विच विल बी 3 plus 1.2 plus 3 which will be 7.2. तो टोटल हाइट विल बी 7.2 प्लस पाई 10 स्क्वायर. फिर वही बात, आप कैलकुलेटर पे ही पाई की वैल्यू यूज़ करें ताकि आंसर में डिविएशन कम से कम हो. इट विल बी 7.2, दिस विल बिकम 452.39 plus 100 pi, this will be plus, अच्छा ये कितना हो जाएगा, सॉरी, this will be 314.16, 314.16. what you'll do now, you'll add 452.39 to it. the answer will be 766.5, 766.5, or in 3 significant figures 767 will be your required answer. ठीक है. फिर बोलता है अनिल हैज़ अ स्लाइस ऑफ दिस चॉकलेट कवर्ड बर्थडे केक. हिज स्लाइस इज अ प्रिज्म. अब देखें, प्रिज्म वो ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसके 2 अपोजिट फेसेस सेम हो. सही है, कोई से भी 2 अपोजिट फेसेस सेम हो. तो इस ज्योमेट्रिक फिगर के लिए ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये जिस तरीके से ऊपर सेक्टर बना है बिल्कुल उसी तरीके से नीचे भी सेक्टर बना होगा. ठीक है. तो समझिएगा, ये प्रिज्म है जिसकी हाइट 7.5 है. द टॉप ऑफ द केक इज अ सेक्टर ऑफ रेडियस 10.3. एंगल आपको दिया हुआ है x.
the volume of a slice is 200 centimeter cube. What you need to do, you need to find the value of x. Okay, easy सी ना. तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया. बेस एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ द सिमिलर फेसेस, बेस एरिया इनटू हाइट. तो बेस एरिया किसके बराबर होगा, देखें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 200. बेस एरिया विल बी x over 360, एरिया ऑफ सेक्टर ऑब्वियसली विच विल बी x over 360 पाई और स्क्वायर विच इज़ 10.3 स्क्वायर. ठीक है, और हाइट हमें दी हुई है 7.5. अच्छा, अब x की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल डू, विल सिंप्लीफाई इट. हम डायरेक्ट करते हैं 200 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाय पाई, देन 10.3 स्क्वायर इंटू 7.5. बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले आए, x को हमने सब्जेक्ट बना दिया. तो नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट सिंप्लीफाई 200 डिवाइडेड multiply by 360 divided by pi, sorry, answer divided by pi, then divide by 10.3 square and then divided by 7.5. So the last answer will be 28.80. So the angle will become 28.8 क्योंकि हमने एंगल का जो वैल्यू देनी है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में देनी है. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 says EMF and GLNH. EMF which is this line and GLNH. These both lines are parallel. कहता है find angle FMN. We need to find this angle. ठीक है जी. So this is the required angle and it is saying give a step for each reason. अच्छा जी, तो गिव रीज़न फॉर ईच ऑफ योर स्टेप्स. ठीक है जी, 4 मार्क्स का सवाल है तो वी नीड टू गिव 4 आंसर्स. अच्छा, एक चीज़ और उसने दी हुई है कि LM and LN are equal. तो दिस मीन्स LMN ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और हमें एक एंगल दिया हुआ है विच इज़ GLM. ये एंगल गिवन है. ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं. एक चीज़ समझिएगा कि ये वाला एंगल विल बी 180 माइनस 126. ठीक है, विच विल बिकम 54. तो हम लिखते हैं कि एंगल MLN विल बी 180 minus 126 which will be 54. 180 minus 126 this will be 54. ठीक है, तो ये 54 क्यों है, because angles on straight line जो उसने पहले ही हमें डेवलप करके दी हुई कंडीशन GLNH. ठीक है, तो पहली कंडीशन हम ये लिख देते हैं. सेकंड पार्ट में हमें वो कहता है कि अच्छा, सेकेंडली हम फिर ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं. ये एंगल कितना होगा, देखें, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, मतलब एंगल M और एंगल N दोनों सेम होंगे. हमने पहले ही बात की थी, आपको ये बात पता होगी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल इधर ये साइड और ये वाली साइड इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल. तो एंगल LMN प्लस एंगल LNM plus 54 will be equivalent to 180 because sum of interior angles of triangle. ठीक है जी, तो ये हो जाएगा y plus 54 उधर ले जाते हैं तो ये 126 हो जाएगा, which will become y equals to 126 divided by 2 which will become 126 divided by 2 will be 63. तो ये एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे 63 के. ठीक है, एक चीज़ और, अगर ये एंगल 54 है,
अगर ये एंगल 54 है तो ये एंगल भी 54 होगा। तो क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल EML and angle MLN will be equal, which will be 54, because alternate angles of parallel lines, और हमारे पास पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, EMF and GLNH। अच्छा, लास्ट रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हैंस एंगल FMN will be equivalent to 180 minus 63 minus 54, which will become 180 minus 63 minus 64, which will be 60 minus 54 will be 63। तो इसका रीज़न आप लिख देंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन की आगे नाम लिख देंगे। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ABCD आर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर O, BD and AD intersect at E, and BC is a diameter of a circle। कहता है एंगल ACD is X, DOC is Y। What we need to find? We need to find an expression in terms of X or Y for DBC। अच्छा, तो DBC will be this angle। अच्छा, समझिएगा बात, सेम सेगमेंट से जो भी एंगल्स आ रहे होते हैं, जो सेंटर वाला एंगल होता है विल बी ट्वाइस, ये सेंटर वाला एंगल जो है Y है, तो जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली हाफ एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल आगे सर्कमफ्रेंस वाला एंगल का हाफ हो जाएगा, तो सेंटर वाला एंगल Y था, तो ये Y/2 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा पार्ट पूछता है फाइंड एंगल ABD, तो सॉरी ABD, यस, तो ABD एंगल विल बी दिस, हम देखते हैं इसी सेगमेंट से, इस AD सेगमेंट से और कोई एंगल आ रहा है हमें जो गिवन हो, तो यस हमें एक एंगल ये गिवन है विच इज़ X, तो ये वाला एंगल भी X हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे कहता है कि फाइंड AED। अच्छा जी, तो AED मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल देखें किसके बराबर होगा। समझिएगा, हमने एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि डायामीटर के जो अपोजिट एंगल होता है वो 90 होता है। ठीक है, और ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये लेट्स से ये ट्रायंगल है BAE, तो BAE का ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, तो ये 90 + X, तो AED विल बिकम 90 + X, 90 + X। ठीक है जी, ऑलराइट, तो बाकी लास्ट में हमें क्या रह गया है, ये y/2 था, सही है। तो लास्ट में हमें एंगल क्या रह गया, BAD निकालना है, BDA, सॉरी BDA, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ऑलराइट, तो ये वाला एंगल मुझे मिल चुका है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी देखें सेम सेगमेंट से जो एंगल आते हैं वो सेम होते हैं, तो DC सेगमेंट से, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, DC सेगमेंट से एक एंगल ये आ रहा है और इसी सेगमेंट से एक एंगल ये आ रहा है, तो सॉरी एक एंगल ये आ रहा है, तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर होगी, ये एंगल हो जाएगा y/2। तो जो हमारे पास अननोन एंगल है विच इज़ BDA, तो BDA प्लस ये हमारे पास एंगल है y/2 प्लस ये वाला एंगल था ये 90 + X will be 180, तो BDA will become
उधर जाके 90 माइनस करेगा, 180 माइनस 90 विल बी 90 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो आंसर हो जाएगा 90 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, कहता है ABCDE इज़ अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड। सही है ना, तो उसकी बेस रेक्टेंगल है और वो है पिरामिड जो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे बाकी सारे ट्राइंगल्स। ठीक है, जो उसके फेसेस हैं वो ट्राइंगुलर फॉर्म में होंगे, वो एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे। ठीक, तो कहता है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म। आगे कहता है AC and BD intersect at F। AC, this is line AC, और BD intersect at this point। ठीक है जी। फिर आगे कहता है EF is perpendicular to FC। EF जो है वो FC के परपेंडिकुलर है। मुझे कहता है कि AD डिस्टेंस 10 है, DC डिस्टेंस 6 है, EC डिस्टेंस 12 है। ठीक है जी। कहता है शो दैट EF, वेयर इज EF, अच्छा दस, EF is 10.5 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है जी। तो इसको किस तरीके से करेंगे समझिएगा बात। सबसे पहला जो है, मुझे बेसिकली एक दिमाग में ना एक मैं छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ट्रायंगल्स नहीं बनाऊँगा ये कहानी इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो मुझे सॉल्व करना है। मुझे निकालनी EF की वैल्यू है और ये F कहाँ तक आ रहा है, C तक आ रहा है। तो वी आर गिवन विद दिस 12, आई नीड टू फाइंड दिस, मगर उसके लिए मुझे FC भी चाहिए। तो FC मैं कैसे निकालता हूँ? FC के लिए अगर मैं ये रेक्टेंगुलर बेस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के वर्टाइसिस पे जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये इसका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, मतलब AD विल बिकम बेस, DC विल बिकम परपेंडिकुलर और AC विल बिकम द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले AC निकाल लेता हूँ। AC स्क्वायर विल बिकम 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच विल बिकम 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड देन व्हाट विल डू, विल टेक अंडर रूट ऑफ इट। तो इसका अंडर रूट आंसर आ जाएगा 11.66। अच्छा, क्योंकि ये डायगोनल बीच में कट कर रहे हैं 11.66, तो अगर ये पूरी लेंथ AC 11.66 है, तो ये जो मिड पॉइंट वाली F से लेके C तक जो लेंथ होगी वो उसका हाफ हो जाएगी, विच विल बिकम 5.83। तो हमें जो EF जो FC जो हमें लेता जाएगी, FC विल बिकम 5.83। तो अब ये 5.83 आ गई। नाउ वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर विच इज EF स्क्वायर्ड। तो ये कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 5.83 स्क्वायर and under root of this, under root of answer will become 10.48, और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5.83 स्क्वायर। तो EF will become 10.48, which correct to 1 decimal place will become 10.5 centimeters, which was a required आंसर। अच्छा, फिर कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड की वॉल्यूम होती है 1/3 बेस एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास रेक्टेंगल है, विच विल बिकम 10 टाइम्स x, 1/3 10 टाइम्स x, और हाइट हमने कितनी निकाली 10.5। तो इट विल बिकम 10 into 6 into 6 into 10.5 divided by 3. So the required answer will be 210 centimeter cube. नेक्स्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट एंगल DEC। ठीक है जी, तो हमें एंगल निकालना है
डी ई सी, हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? देखें, ये साइड और ये साइड दोनों 12 होंगी, ये साइड भी 12 होगी। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ फिर अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए, कि मुझे बेसिकली ई सी और डी, तो ये लेंथ 12 दी हुई ऑब्वियसली, क्योंकि ये पिरामिड है तो ये वाली लेंथ भी 12 ही होगी, ठीक है। और ये लेंथ 6 दी हुई है और मुझे ये एंगल निकालना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एंगल। तो लॉ ऑफ कोसाइन किस तरीके से लगेगा, देखिए, डी ई सी। अगर मैं चाहूँ तो इसमें लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकता हूँ, नहीं तो एक ऑल्टरनेट तरीका भी है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और फिर कॉस का निकाल लूँ एंगल, ये जो भी एंगल आएगा उसको मैं ट्वाइस कर दूँ, विल गिव द आंसर एज वेल। क्योंकि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे करूँ, ये बेस है, सही है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन एंगल एक्स विल बिकम 3/12। तो x will become sine inverse 3/12, which will become sine inverse 3 divided by 12. This will be 14.47. क्योंकि ये हाफ एंगल है तो what I'll do, I'll multiply it with 2 in order to get the required answer। ये हो जाएगा 28.95 और 29.0। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। इसके बाद बोलता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डी ई सी। नाउ दिस इज ईजी, क्योंकि आपको ये एंगल मिल गया है 29 और ये दोनों साइड्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 12 times 12 sin angle 29। तो दिस विल बिकम 12 into 12 into sin 29 डिवाइड बाय 2, ये आंसर हो जाएगा 34.9। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। Alright, so moving forward to last question, it says describe fully the single transformation that maps triangle A onto B। A triangle जो मैप हुआ हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये रिफ्लेक्शन हुई हुई है। तो रिफ्लेक्शन, क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो एक रिफ्लेक्शन, दूसरा मुझे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए अगेन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करें 3 यूनिट्स, हो 1 2 3। दिस विल बी योर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज y इक्वल्स टू अलॉन्ग y इक्वल्स टू -1, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है ट्राइंगल A इज मैप्ड ऑन टू C बाय सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन H, फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग H। अच्छा, अब देखें ये बड़ा इजी सीन हो गया कि अगर मैट्रिक्स पूछ रहा है तो मैट्रिक्स के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन हमेशा 0,0 ही रहेगा। तो A जो C पे मैप हुआ हुआ, ये आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ हुआ है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में हमें याद है कि ए बी जो स्वैप होके बनते थे वो बनते थे -BA, और -BA के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आता है वो 0 -1 1 0 आता है। फिर लास्ट पार्ट क्या कहता है, द ट्रांसफॉर्मेशन M इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू 2, ट्रांसफॉर्मेशन R इज अ रोटेशन 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन, triangle A is mapped onto D such that RM of A is equals to D। सही ना, मुझे ऑब्जेक्ट D बनाना है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से सवाल दे तो ये बात समझिएगा कि सबसे पहले हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पहले हम M ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। वंस वी आर डन विद M ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद फिर हम R पे आएंगे। अब इधर देखें, इधर M ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अलॉन्ग Y एक्सिस, सॉरी x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 की ये लाइन बना देते हैं। x इक्वल्स टू 2 पे हम पहले इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं 1 यूनिट अवे, ये भी 1 यूनिट अवे पॉइंट आ जाएगा, ये 2 यूनिट्स अवे, ये भी 2 यूनिट्स अवे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर इस तरीके से।
मगर दिस इज़ नॉट द इमेज, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उसके बाद वो फर्दर क्या ट्रांसफॉर्म करा रहा है, वो कहता है कि रोटेट करें अबाउट 0,0। हमें याद है कि जब भी हम 180 डिग्री पे रोटेट करते थे तो जो भी कोऑर्डिनेट्स होते थे उनकी साइन चेंज हो जाती थी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2, तो अब जो न्यू ऑब्जेक्ट डी बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 -2, तो -1 -2 विल बी दिस पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट से 0,2 तो ये हो जाएंगे 0 -2, इसके कोऑर्डिनेट से 0,5 तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -5। तो दिस विल बी योर ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट विच इज डी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये पेपर ख़त्म होता है। इनकेस आपको कोई और पेपर हो जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।